alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Medibil Pro. So today we are going to start our 47th lecture in basic medical billing course. I hope you guys will be fine and doing great. So in this lecture we are just going to have different kind of questions which will be covering the interview questions. Okay. So this is the extended lecture. I guess that in our previous lectures, I have already made one or two lectures on interview questions. One was for the medical billing freshers and one was for the experts. But now in this section or in this lecture, we are just going to cover different kind of updated questions regarding medical billing. Like when you are in your interview, you just need this kind of a stuff and updated kind of a things. Okay, so we will be covering the updated interview questions in this section and in this lecture. So always remember, before going to your interview, you just need to watch this lecture and memorize these questions because the interview person, they are just going to ask these kind of a questions. Okay, so my best wishes are for you guys. If you are just going to apply for different kind of a jobs in medical billing, then please go ahead and watch this lecture and memorize these questions, okay, before your interview. So without wasting time, let's start the lecture. Okay, so I have just made near about 30 questions for you guys, and there are a few terminologies as well. Okay, we will be just looking for different terminologies that are being covered in this lecture. Okay, that are very important one. So I have just sort out those kind of terminologies. We have already made a lecture, brief lecture on medical billing terminologies previously, but now we are just going to focus on the specified and for the imported ones. Okay, so the first question is going to be, can you please explain the basic process of medical billing? Yes, that is the burning question. You guys know that means whenever you are in an interview, they are just going to ask you that what do you know about medical billing? Like you can say that, or they will surely say that, what is medical billing? What is the process of medical billing? How do you know that? What is means these kind of a questions the interview panel is just going to ask. Okay, so your answer would be precise, simple, and short. Okay, you don't need to exaggerate different kind of a things while saying that medical billing has different kind of steps and we are just going to cover these in medical billing. We are just going to follow up on claims. We are just going to add payment posting, blah 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 blah. Okay, so you just need to be simple, accurate, and correct. Okay, so the answer is medical billing involves translating healthcare services into billing claims. Okay, so in this you guys just focus that translating healthcare services into billing claims. Okay, means all the services which are rendered by the providers, we are just making those services into coding. Like we are just converting or translating or coding those kind of a things into different codes like ICD codes or procedure codes. Okay, it starts with gathering patient information. We just gather the patient information. Okay, verifying insurance, assigning codes to diagnosis and procedures, and submitting claims to insurance providers for reimbursements. So that's it. Okay, so in these 2 to 3 lines, you can just cover this kind of a topic without any hesitation, without any scruple. Okay, so always try to answer the different questions simply and correctly. Okay, so this was the first question, like, can you please explain medical billing? Okay, so let's see what is the next one. That's what motivated you to pursue a career in medical billing and how you have prepared for this role as a student. Yeah, as an intern, if you are just looking for a job in medical billing, then you guys need to know that this kind of a answer. Okay, this kind of a question, the interview panel is just going to ask this one. So always be prepared for any kind of a question. Okay, so they will be surely say that what pursue you means what are you looking for in medical billing, or what motivated you. Okay, so the answer is going to be, I have a strong interest in healthcare administration. Okay, and medical billing offers a vital intersection of healthcare and finance. As a student, I have taken relevant course, participated in workshops, and completed internships that provided exposure to the basics of medical billing. And you guys just can say that I have just completed my course on YouTube channel. Okay, you can just simply say that one, that will be fine. Okay, and I have a good interest. I just thought that this is a growing field. This is There are different kind of evolutions in medical billing, and I am very much interested in this kind of a field, and I have already completed my internship course. If you have done, okay, then you can just add that kind of a comments into that interview. Okay, and if you have not, then you can just watch all those lectures which are available on my YouTube channel. You can also visit other kind of a channels as well, but
for Indian and for Pakistanis. As you guys can, there are a few viewers as well which are just watching my channel in USA as well. Okay, so if you are new to this field, then you can just learn different kind of things on my channel, because the main theme of this kind of a lecture or this kind of a course is in English. Okay, so I am just using the bilingual, like both languages, because my most of the viewers are from Pakistan and India, and I was making these kind of lectures for those especially, because I want to make sure that everyone is just going to learn this new field and they can get jobs in this one. Okay, so anyhow, we will be just discussing all about, if you are new to this field, then you can just add these kind of things into that one, that you have just completed your internship or you have completed the basic course via YouTube channel. Okay, so this will be a good impact on them. Okay, so let's see what we have next. What experience do you have with insurance verification? Okay, so after completing your basic course, they are just going to ask you different kind of a questions regarding your previous experience in medical billing. So you can just say that in my previous internship, I regularly verified patients insurance coverage to confirm eligibility and benefits. I communicated effectively with insurance companies to resolve any discrepancies and ensured a smooth billing process. Yes, before sending a claim, before making a claim, you just need to verify the patient eligibility. Okay, because patient eligibility verification is quite important, because if you submit a claim without patient verification eligibility, okay, and the patient is not eligible on the date of service, then your claim is not going to be processed properly. The insurance company is going to deny your claim. Okay, because you guys know that there are specific and different kind of insurance companies in USA, and they are being they are covering different kind of a patients as well. Okay, so if the patient is not with them, then why they will cover? Okay, so you have to always confirm if the patient is eligible, if the patient is active with that kind of insurance, then you can just send the claim. Okay, so how do you handle denied claims, and what steps would you take to resolve them? Yes, if there is a claim that is denied, then how you are going to deal with that one, how you are going to make different kind of a changes in that one. Okay, I guess we are just making the whole lecture in English. Okay. I guess you guys can understand this one kind of a because I'm using the simple English, that is fine, that is okay for you guys, I guess. Okay, so for my, because you guys know that there are few viewers as well who have little bit difficulty while understanding English, so therefore I just use both languages, okay, regularly. Anyhow, I am just going to use that one as well now. Okay, so how do you handle denied claims and what steps would you take to resolve them? Like अगर कोई claim deny हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों ने क्या steps लेने होते हैं कि हाँ भी उस claim को आप लोग process करवा सकें. Okay, so answer क्या है? Simple. When faced with denied claims, I first identify the reason. जाहिर सी बात है, डिनाई हुआ है, किस वजह से हुआ है, what is the solid reason behind that denial. Okay, you just need to follow that suit, you just need to get that kind of a denial reason. Okay, या तो ये है कि आप लोगों के पास EOB के ऊपर या ER के ऊपर वहाँ पर कोड्स लगे होते हैं स्पेसिफिक, ठीक है, डिनाइल कोड्स होते हैं, और उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई होती है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप क्या कहते हैं, वो आप इंश्योरेंस को कॉल करते हैं, इफ़ यू आर फॉलोइंग अप ऑन क्लेम, एंड यू जस्ट नीड टू गेट द क्लेम स्टेटस, एंड दे विल श्योरली लेट यू नो दैट व्हाट इज द डिनायल रीजन बिहाइंड दैट क्लेम. Okay, so it could be an error in coding or incomplete information. I address this issue means मैं ये है कि फिर उस इशू को देखूंगा, उसको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है. मेक नेसेसरी करेक्शंस, अगर उसकी एलिजिबिलिटी के अंदर कोई इशू है, इंश्योरेंस गलत सेलेक्ट हुई है तो उसको सेलेक्ट करूंगा. और इसके अलावा अगर क्या कहते हैं कोई और मसला है उसके अंदर, लाइक कोडिंग का इशू है, कोई मॉडिफायर का इशू है, ठीक है, कोई प्लेस ऑफ सर्विस का इशू है, मीन इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं. सो उसको एड्रेस करना है, उसको करेक्ट करना है सिंपली, ठीक है. Make necessary corrections and resubmit the claim promptly. Following up with insurance companies is crucial to expedite the resolution process. Yes, means simple, accurate and correct. Okay, सो मीन्स ये है कि क्या करना है, सबसे पहले जब डिनाइल आया तो डिनाइल देखना है, रीज़न क्या है, उसको करेक्ट करना है, करेक्ट करने के बाद उसको रीसबमिट कर देना है. दैट्स इट. ओके. Next is, can you provide an example of challenging situation you encountered in medical billing and how you resolved that one? Yes, the interview panel can ask you कि हाँ भी आपकी ज़िंदगी में ये कभी आप मेडिकल बिलिंग के काम कर रहे हो, ठीक है, या आप लोगों को मीन्स ये है कि जब आप स्टडी कर रहे थे तो उसके अंदर सपोज करें कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर मीन्स ये क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द मेडिकल बिलिंग एंड एग्जांपल ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशन, ठीक है.
अगर कोई आ जाती है, देन हाउ यू आर गोइंग टू रिजोल्व। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से हुआ है, देन यू कैन जस्ट लेट देम नो। ओके, सो द आंसर कुड बी, during a busy period I encountered a situation where there was a sudden influx of denied claims। मीन्स बहुत ज़्यादा डिनाइड क्लेम्स आ गए थे। ठीक है, नॉर्मली काफ़ी ये है कि जब डेमो टीम ये है कि चार्जेस को थ्रो करते हैं, उसके बाद ये है कि इंश्योरेंस, जाहिर सी बात है, मीन्स विद इन द वीक नॉर्मली सारी इंश्योरेंस के हैं क्लेम्स जो हैं वो प्रोसेस कर देती हैं। कुछ का ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, कुछ का कम होता है। नॉर्मली ये है कि विद इन अ वीक, मीन्स ये है कि विद इन अ वीक, यू टू 2 वीक्स, मीन्स ये है कि नॉर्मली जो क्लेम है आप लोगों का वो प्रोसेस हो जाता है। Okay, so I discovered a coding error. I promptly rectified that error, resubmitted the claim, and implemented a system to double check codes to prevent similar issues in the future। ठीक है, अब हम नॉर्मली ये भी करते होते हैं कि हमारे जो न्यू सॉफ्टवेयर होते हैं उनके ऊपर ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि हाँ भी हम वहाँ पर चेक्स लगा देते हैं कि अगर इस तरीके का कोई क्लेम दोबारा आता है, उसके ऊपर ये मिस्टेक्स होती हैं, तो हम ये है कि उसको वो क्लेम आगे इंश्योरेंस को डिलीवर नहीं होता, वो वहाँ पे स्टक हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, so normally if you have encountered any challenging situation, then you can just explain that well। ठीक है, वो एक्सप्लेन कर दें उनके सामने, दैट विल बी फाइन। बट इफ़ यू वांट टू मेमोराइज दिस काइंड ऑफ अ थिंग, देन यू कैन जस्ट से दैट कि हाँ भी काफ़ी सारे क्लेम्स आ गए थे, उनके ऊपर कुछ एरर्स थे, मैंने प्रॉम्प्टली उनको रिजॉल्व किया और उसके बाद ये है कि उनको रीसबमिट किया, और ये है कि जो सिस्टम है उसके अंदर चेक्स भी लगवा दिए कि हाँ भी, ताकि ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरीके से कोई क्लेम आता है तो वो यहाँ पर स्टक हो जाए, वो ये है कि इंश्योरेंस को सेंड ना हो, ताकि हमारे पास डिनाइल्स का जो रेशो है वो कम हो। ओके, so next is, how do you stay updated on changes in medical coding and billing regulations। मीन्स ये है कि बिलिंग के अंदर जाहिर सी बात है कोडिंग की और डायग्नोसिस कोड्स और प्रोसीजर कोड्स, इसके अलावा जो इंश्योरेंसेज हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आती रहती हैं, तो उनके साथ आप कैसे अपडेटेड रहते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये, आई सब्सक्राइब टू इंडस्ट्री न्यूज़ लेटर। मीन्स ये कि काफ़ी सारे न्यूज़ लेटर्स होते हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ये है कि आपको अपडेट्स आती रहती हैं। ठीक है, लाइक मेडिकेयर, इसके अलावा बहुत सारी मीन्स इंश्योरेंस जो है उनका न्यूज़ लेटर जो है आप सब्सक्राइब कर लें, वो आपको ईमेल भी करते हैं। ठीक है, सो उससे ये है कि आपके अंदर मीन्स कोई भी अगर चेंज आती है, देन यू कैन जस्ट लेट, देन यू कैन बी just informed with that kind of a thing। Okay, so attend relevant webinars and participate in professional development courses, networking with colleagues, and begin an active member of professional associations also helps me stay informed about any changes in regulations। ठीक है, मीन्स दिस काइंड ऑफ आंसर यू कैन जस्ट गिव टू देम। ओके, मीन्स सिंपल बताना है कि हाँ भी काफ़ी सारे मैं ये है कि न्यूज़ लेटर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी सारे मैंने वर्कशॉप्स या वेबिनार्स होते हैं, और इसके अलावा क्या कहते हैं, जो इंश्योरेंस से डायरेक्टली भी हम मीन्स ये कॉल्स के ऊपर भी उनसे अपडेट्स ले सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोगों ने सिंपल एक आंसर उनको बना कर देना है जब वो आपसे क्वेश्चन करें कि हाँ भी, हाउ डू यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ अपडेट्स, ओके, ऑन डिफरेंट मीन्स ये है कि यूएसए हेल्थ के सिस्टम के बारे में। ओके, okay, so next we see, how do you prioritize and organize your workload to meet deadlines। मीन्स अगर आप लोगों के पास डेडलाइंस होती हैं, यू आर फॉलोइंग अप ऑन डिफरेंट क्लेम्स और डिफरेंट टास्क। ठीक है, आप डेमो टीम के अंदर हैं, मीन्स एआर टीम के अंदर हैं, ठीक है, पेमेंट पोस्टिंग के अंदर हैं, सो हाउ डू यू मीट योर डेडलाइंस। ओके, सो आंसर, आई यूज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रायोरिटाइज टास्क बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस। मीन्स ये है कि सबसे पहले देखा जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट टास्क है, उस कौन को किसको मीन्स ये है कि प्रायोरिटाइज पहले करना है। लाइक ये कि अगर किसी के ऊपर कोई पुराना क्लेम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको जाहिर सी बात है पहले, क्योंकि वो एजिंग के अंदर आता है। एजिंग जब जैसे आपकी इंक्रीज होती है तो आपका जो परफॉर्मेंस ग्राफ होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, यू नीड टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस ग्राफ, ओके, एंड डिक्रीज योर डिनाइड क्लेम्स। ओके, ठीक है, जो आपके क्लेम्स पड़े हैं, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स पड़े हैं, उनको ये है कि पहले रिजॉल्व करो। ठीक है, जो न्यू क्लेम्स हैं, सबमिटेड क्लेम्स हैं, ठीक है, विद इन 30 days हैं, सो उनके ऊपर यह है कि स्लोली आप बेशक काम कर सकते हो। Okay, I maintain a well-organized schedule, utilize task management tools, and regularly review deadlines to ensure that I meet or exceed expectations। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोगों ने किसी भी टास्क को, मीन्स ये है कि नॉट ओनली इन मेडिकल बिलिंग, बट इफ़ यू हैव एनी अदर काइंड ऑफ अ जॉब रेलेवेंट टू दिस काइंड ऑफ अ, मीन्स ये है कि नेचर कह सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर भी आप काम करें, तो उसके अंदर भी जाहिर सी बात है आप लोगों ने अपनी डेडलाइंस रखी होती हैं, कोई प्रायोरिटाइजेशंस होती हैं कि हाँ भी इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है। सो दिस rule will be applicable to those as well। Okay, so next is, how do you handle confidential patient information in compliance with HIPAA regulations। अगर आप लोगों के पास HIPAA regulations की मीन्स है कि जाहिर सी बात है, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट जो है यूएसए का, इसको फॉलो करते हुए आप जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है उसको कैसे सिक्योर रखते हो, उसको कैसे कॉन्फिडेंशियल रखते हो। ठीक है, these kind of a questions
you can memorize after watching the like 46 lectures. ओके, आप लोगों ने जब 46 लेक्चर जब देख लेंगे उसके बाद रहेगा कि आप लोगों को इजी लगेगा। ये नहीं है कि अगर कोई मीन्स ये कि इफ़ यू आर न्यू व्यूअर टू दिस वन, ओके, आप जस्ट यही वीडियो ही देख रहे हैं, देन आप लोगों को ये जस्ट लेक्चर समझना बहुत मुश्किल होगा। ओके, आप लोगों को इसके लिए जाहिर सी बात है एक सीरीज़ के अंदर मीन्स लेक्चर्स चल रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नो हाउ में आ जाती हैं कि हाँ भी क्या चीज़ होती है मेडिकल बिलिंग, उसके अंदर प्रोसेसेस क्या होते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो सीक्वेंस वाइज ही मैंने कोशिश की है कि मैंने बनाया है। ठीक है, सो आप लोगों ने ये है कि अगर ये वीडियो आप नहीं देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, देन यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस काइंड ऑफ अ लेक्चर। ओके, so I understand. Back to the work. Okay, I understand the importance of patient privacy and adhere strictly to HIPAA regulations. I ensure that access to patient information is restricted. Means patient की जो भी information है वो restricted है, किसी को easily available नहीं है, unless कि कोई authorized person हो. Okay. उसके बाद है use secure communication channels and regularly undergo training to stay current on privacy rules. Yes. जब भी आप ज़ाहिर सी बात है किसी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं इंश्योरेंस को भी, उसके अंदर भी कोई मीन्स ये कि डेमो शीट लगी है तो आप उसको निकाल देते हो। उसके अलावा ये है कि अगर वो मेडिकल रिकॉर्ड्स मांगते हैं तो आप उनको सेंड करते हो, बट जाहिर सी बात है इंश्योरेंस को सेंड करना है वो तो एक लाजमी है, लेकिन ये दिस इज़ अंडर द हिपा रूल्स कि हाँ भी आप इस तरीके से इस चैनल से इंश्योरेंस को सेंड करते हो। जाहिर सी बात है जिस पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने जिस इंश्योरेंस को सेंड करनी है उसी ने उसका क्लेम प्रोसेस करना है, अगर उसको रिक्वायर्ड है देन यू कैन सेंड दैट, अदरवाइज यू आर नॉट going to send any kind of a document, a single document to any irrelevant person। ठीक है, और irrelevant इंश्योरेंस, ये नहीं है कि हाँ भी एक इंश्योरेंस जो उसकी है ही नहीं आप उसको गलत इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो पेशेंट की, सो दैट इज नॉट गुड अ प्रैक्टिस। ओके, so next we see what we have. What software or tools are you familiar with for medical billing purposes? Yes, if you have experienced any kind of a software of medical billing, then you can just state that kind of a thing over there. Okay, आप यहाँ पर बता सकते हो कि हाँ भी I have already used this one, this one, this one and that one. But I have used means Telcor use किया है, Tebra use किया है, previously it was Cario, okay, and I have also used advanced MD as well. So you guys means ये कि इस तरीके से आप लोग बता सकते हो कि I have previously worked on these kind of softwares। ठीक है, अगर आप लोगों ने डॉक्टर क्रोनो और भी ECWO मैंने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी एक लेक्चर बनाया है। ठीक है, उसके ऊपर ये है कि आप लोग इजीली मीन्स ये कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो कि वर्किंग कंडीशन के अंदर है और ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं मेडिकल बिलिंग के अंदर, तो आप लोग उसके ऊपर भी देख सकते हो। ओके, so answer, I have experience with popular medical billing softwares such as Tebra, Advanced MD, Dr. Chrono and etc. Additionally, I am proficient in using Microsoft Excel for data analysis and reporting, which enhances my ability to generate comprehensive billing reports। ठीक है, आप इसके साथ ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो, that will be a plus point। Okay, so 10th question is how do you approach communication with healthcare providers and insurance companies for clarification or additional information? ठीक है, आप इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मीन्स ये कि कैसे अप्रोच करते हो, उससे ये है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है देन हाउ यू आर गोइंग टू डील दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, answer is clear and concise communication is key। Yes, as I have just mentioned that clear, correct, ये है कि कंसाइज मीन्स एग्जिजरेट नहीं करना, लॉन्ग लास्टिंग क्वेश्चंस मीन्स ये है कि कुछ जैसे ये है कि एग्जिजरेट करते जाओ और ये है कि क्वेश्चन जो आपका है मीन्स उसके अंदर ये है कि जो गुड इन्फॉर्मेशन होती है, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कम हो, और आप ये है कि मीन्स ये है कि फजूल या मीन्स ये है कि एब्सर्ड काइंड ऑफ सेंटेंसेस वहाँ पर बोलते जाएं, ये है कि अगलों को भी मीन्स ये है कि हेजिटेशन फील हो कि हाँ भी व्हाट यू आर डूइंग। ओके, so just be clear, concise and correct। Okay, clear, concise and correct, 3 C's। Okay, उसके बाद ये क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन इज की। आई proactively reach out to the healthcare providers and insurance companies to seek clarification on ambiguous information। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो ये है कि आप लोगों को डिनाइल आया है या आप लोगों को लगता है कि हाँ भी ये करेक्ट नहीं है, आपने एलिजिबिलिटी किसी पोर्टल से ली है, इंश्योरेंस से ली है कि हाँ भी वो करेक्ट नहीं है, देन यू जस्ट नीड टू अप्रोच टू द प्रोवाइडर, प्रोवाइडर से पूछें। ठीक है, जो जो इस क्लाइंट का आप काम कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये है कि उस कंपनी से मीन्स ये कि इंश्योरेंस कंपनी से भी बात कर सकते हैं कि हाँ भी हमारे पास ये पेशेंट है, उसका ये डेटा है, तो आप हमें क्या इसके बारे में बता सकते हो कि हाँ भी इनकी इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं है। ओके, कुछ इंश्योरेंस अच्छी होती हैं वो बता देती हैं और कुछ नहीं होती हैं, लाइक वो कहते हैं कि नहीं हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ हो गई, पेशेंट की मीन्स ये कि डेट ऑफ सर्विस भी बता दें, और पेशेंट के क्या कहते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, और उसका एड्रेस भी समटाइम्स पूछ लेते हैं, तो ये जब तक आप उनको नहीं देते वो आपको इंश्योरेंस की जो इन्फॉर्मेशन होती है करेक्ट वो नहीं देते कि हाँ ये पेशेंट एलिजिबल है कि नहीं है। Okay, so I document all the communication and maintain a professional and collaborative
अप्रोच टू रिजोल्व एनी इशू प्रॉम्प्टली। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई इशू आता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ भी मैं इस तरीके से क्लियर और कंसाइज तरीके से प्रोवाइडर के पास या इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूँ और वहाँ से ये है कि जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है वो रिसीव करके उसको जो एरर है उसको करेक्ट करके मीन्स ये कि नेक्स्ट ये स्टेप ले लेता हूँ। ठीक है। Okay, so 11th question is explain the importance of revenue cycle in medical billing. Revenue cycle क्या होता है? ठीक है, I have already discussed this in a detailed view। ठीक है, हमने डिटेल के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी थोड़ा सा इसको कंप्लीट किया था और उसके अलावा ये नेक्स्ट जो मेरे लेक्चर्स हैं उसके अंदर भी रेवेन्यू साइकिल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और वो कैसे काम कर रहे होते हैं। सो ऑल दिस इज डिस्कस्ड ऑलरेडी इन माय प्रीवियस लेक्चर्स। So revenue cycle encompasses the entire process फ्रॉम पेशेंट रजिस्ट्रेशन, जब से पेशेंट आता है हमारे पास, टिल ये है कि पेशेंट की जो फाइनल स्टेटमेंट होती है, यू कैन से दैट कि हम भी फाइनल रिसीविंग होती है, वो करने तक ये है कि जो इतने भी स्टेप्स उसके अंदर आ रहे होते हैं वो हमारे रेवेन्यू साइकिल में काउंट होते हैं। Okay, from patient registration to the final collection of payments, it's crucial for financial health. Okay, my role in medical billing contributes directly to optimizing this cycle by ensuring accurate coding, timely claim submission, and efficient reimbursement processes. Okay, सो आप बता सकते हैं कि हाँ भी मेडिकल जो क्या कहते हैं रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट होता है या रेवेन्यू साइकिल होता है उसके अंदर ये है कि पेशेंट की रजिस्ट्रेशन से उसकी जो लास्ट पेमेंट है वो रिसीव होने तक, लाइक ये है कि इंश्योरेंस ने पे कर दिया उसके बाद कोई पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब तक वो भी कंप्लीट नहीं हो जाती और उसकी पेमेंट पोस्ट नहीं हो जाती, उसका अकाउंट अपडेट नहीं हो जाता, तब तक ये है कि ये जो साइकिल ये है कंप्लीट नहीं होता। ओके, सो दिस वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Next is how do you handle situations where there are changes in coding guidelines or billing regulations। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिसके अंदर कोडिंग की गाइडलाइंस मीन्स ये कि चेंज होती हैं या बिलिंग की रेगुलेशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो। I stay proactive by regularly monitoring updates from coding organizations and regulatory bodies. When change occur, I promptly incorporate them into our billing processes. This includes updating code sets, information that informing the team and ensuring compliance with the latest guidelines. Okay, so इस तरीके से आप लोग उनको आंसर कर सकते हैं कि हाँ भी जब भी कोई ये है कि अपडेट्स आती है तो मैं अपनी टीम को, डेमो टीम है या मीन्स ये है कि एआर की टीम है, तो उनको मैं ये है कि बता देता हूँ कि हाँ भी इस तरह की चेंज आने वाली है। सो दे जस्ट अपडेट दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ये है कि वो फिर इस तरह की जो चीज़ होती है वो उसको मेंटेन करते हैं और नेक्स्ट ये है कि उस चीज़ को रिपीट नहीं करते अगर वो जिसकी वजह से हमें डिनाइल्स आ रहे होते हैं। ओके। Okay, so next we see, can you discuss your experience with electronic health records, EHR? ठीक है, systems. Yes, I have hands-on experience with EHR systems such as, यहाँ पर आप लोगों ने mention कर देना है, ये क्वेश्चन पहले भी मीन्स ये है कि रिपीट हो गया है। ठीक है, उसके अंदर भी यही बताना है कि हाँ भाई जिस जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने काम किया है ऑलरेडी, ठीक है, ये देखा है तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू हैं जैसे कि ये फ्रेशर्स के लिए है, देन यू कैन जस्ट से दैट आई हैव अ थियोरेटिकल काइंड ऑफ नॉलेज बट फॉर प्रैक्टिकल काइंड ऑफ नॉलेज आई एम हेयर। मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं इस क्या क्या इवॉल्विंग एक स्किल के अंदर या इस मीडिया के फील्ड के अंदर मैं भी ये है कि एक पार्ट कर सकूँ, एक पार्ट बन सकूँ इसका। ठीक है, सो यू कैन से दैट वन। I use these systems to access and update patients' information, verify documentation, and ensure seamless integration with the medical billing process for accurate and efficient billing. Okay, so you can just mention these kind of things over there. How do you handle situations where patients questions their bills or insurance statements? Like ये है कि patient अगर आपको कॉल करता है वो पूछता है कि हाँ भी हमें बिल आया है, so how do you handle this kind of a situation? वो कहते हैं हमारे पास इंश्योरेंस की स्टेटमेंट है, मीन्स ये कि इंश्योरेंस ने उनको कोई बिल भेजा है, ठीक है, उसको भी जाहिर सी बात है ईओ भी जाती है और आप लोगों ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं डॉक प्रोवाइडर की, ठीक है, प्रोवाइडर के बिहाफ के ऊपर आप लोगों ने उसको बिल भेजा है, तो आप वो से पूछते हैं कि हाँ भी ये कैसे मुझे बिल आया है या इसके अंदर क्या है, मीन्स ये कि मुझे कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन वाई आई एम बिल्ड विद दिस, मैंने मेरी तो इंश्योरेंस थी तो उसको ने कवर नहीं किया या क्या सिचुएशन हुई है, तो आप लोग उसको कैसे डील कर सकते हो। आंसर इज आई अप्रोच दिस सिचुएशंस विद एम्पैथी एंड प्रोफेशनलिज्म। आप लोगों ने जाहिर सी बात है उनको प्रोफेशनल वे के अंदर लाइक मीन्स ये डील करना होता है। यस सर, हाउ कैन असिस्ट यू, लेट मी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम जस्ट पुलिंग अप योर अकाउंट। ओके, सो मीन्स इस तरीके से ये है कि प्रोफेशनल वे के अंदर कंपैशन और एम्पैथी के साथ उसको डील करना होता है पेशेंट को। ओके, so I carefully review the billing statements, explain the charges transparently, and if necessary, guide the patients through the insurance coverage details. Clear communication is the key in resolving any concerns and ensuring patient satisfaction. Yes. Okay, so you just need to provide all the information that is required. यह है कि मीन्स ये है कि आप कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं जो ये है कि कुछ चीज़ें बतानी होती हैं कुछ नहीं बतानी होती, बट ये है कि आप उनको जो उनके चार्जेस हैं वो आप उनको बता सकते हो कि हाँ भी यस दिस इज़ अ चार्ज, ये आपके ये जो पार्ट है आपके इंश्योरेंस ने पे कर दिया है, बट दिस काइंड ऑफ अ पेमेंट इज जस्ट पेंडिंग ऑन द गारंटर और द पेशेंट।
ओके, ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई है उन्होंने, एज अ डिडक्टिबल्स बनाए हैं या मीन्स ये कि कुछ को इंश्योरेंस बनाई हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को उनके अकाउंट को एक्सेस करके उनको बता सकते हो। Okay, so next we are just going to have how do you adapt to changes in technology that may impact the medical billing process? Okay, means कुछ ऐसी जो changes आती हैं medical billing के अंदर, तो उनको आप कैसे adapt करते हो? I embrace technological advancements in the healthcare industry, continuous learning and staying updated on emerging technologies ensure that I can adapt quickly. For instance, I am proficient in leveraging automation tools to streamline repetitive tasks and improve overall efficiency. Yes, now we are heading towards different kind of automotive ओके टूल्स, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम ये है कि जो रेपिटेटिव टास्क होते थे उनको ये है कि रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, तो इससे ये है कि जो ह्यूमन क्या कहते हैं पावर होती है वो कम यूज़ होती है, और इस तरीके से ये है कि हमारे जो टास्क हैं वो प्रो एफिशिएंट हो जाते हैं, और एफिशिएंटली ये है कि विद इन नो टाइम और विद इन लेस टाइम ये है कि वो प्रोसेसेस हो जाते हैं। Okay, next question is describe a situation where you had to collaborate with other departments for successful medical billing outcomes. ठीक है, आप मुझे एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर यह है कि आप लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट से भी कंसर्न करना पड़ता है, कोलैबोरेट करना पड़ता है, तो उसके अंदर आप कैसे करते हो? In my previous role, I collaborated closely with the coding department to address discrepancies and improve coding accuracy. This collaboration resulted in a significant reduction in denied claims and improved overall billing efficiency. दिस कुड बी अ आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, आप इस तरीके से उनको बता सकते हैं कि हमें प्रीवियसली मैंने डेमो टीम के साथ या किसी और टीम के साथ काम किया था, ताकि ये है कि उनको भी मैं अपडेट कर सकूँ डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस के बारे में। तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया, हम कलेक्टिवली हमने काम किया, उसके बाद ये है कि जो हमारे डिनाइड क्लेम्स थे वो रिड्यूस हो गए और हमारा जो काम था वो एफिशिएंट हो गया। सो ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से एक शॉर्ट टाइप आंसर बताना है। अब देखिए ना, जब आप कोई जाहिर सी बात है स्केड्यूल बनाते हैं, ओके, टू फॉर योर रूटीन वर्क्स, ठीक है, तो उसके ऊपर आप हमेशा 100% ये है कि अकम्प्लिश नहीं कर पाते, उसके ऊपर मीन्स ये है कि कुछ ना कुछ लैग आता है। लाइक 100% का मीन्स ये है कि आप लोग 60% भी अगर कर लेते हो, 50% 70% भी कर लेते हो, दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, दैट विल बी अ गुड साइन ऑफ योर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और हमेशा इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चंस हैं इसके अंदर से अगर आप लाइक 30 क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को मीन्स ये है कि इनका एक जस्ट क्रक्स ले लें, इनका एक आइडिया ले लें। ठीक है, मैं एक्सप्लेन इस वजह से करता हूँ ताकि ये है कि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड कर सके, इजीली समझ सकें इन चीज़ों को। ओके, सो अदरवाइज आपको ये क्वेश्चंस मीन्स ये कि इंटरनेट के ऊपर भी हो सकता है कि मिल जाएं। ठीक है, वहाँ पर आप इजीली देख सकते हो, वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, बट टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन अ प्रॉपर एंड गुड वे, आई एम जस्ट हेयर फॉर दैट काइंड ऑफ अ रीज़न। ठीक है, ताकि ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता सकूँ, कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं अपना आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो हमेशा कोशिश करनी है कि हाँ भाई, क्वेश्चन को एज इट इज़ रट्टा नहीं लगा लेना। ठीक है, क्रैम नहीं करना उसको, ये है कि ईजी लेके चलना है। आप लोगों को जो आता है, ठीक है, उसको ये है कि मेमोराइज करना है, कंसेप्ट अपने क्लियर रखने हैं। Okay, so if you're just following me from the first lecture, then you will be understanding this kind of a thing, okay, within no time or with easily. Okay, so इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन का ये आंसर करना है। ओके, so next we see what we have over here. It's how do you handle situations where the billing disputes or disagreements between the healthcare provider and the insurance company. अगर health insurance company और provider के दरमियान कोई dispute करना है, like sometimes we have denied claims, not sometimes, we usually have denied claims. So उसके ऊपर आप किस तरीके से disputes मीन ये कि क्रिएट करते हो? dispute मीन्स ये है कि उसके ऊपर अपील करनी होती है कि हाँ भी हमने जो आप लोगों को क्लेम भेजा है वो ठीक था, या फिर उसके अंदर कोई करेक्शंस करनी है, या जो भी वो करके आप दोबारा ये है कि उनको बता दो कि हाँ भी इस तरीके से हमने अपील की है या इस क्लेम को रीसबमिट किया था, फिर भी वो डिनाई हुआ है, तो हम फिर आपको मेडिकल रिकॉर्ड्स भेजते हैं, उनको बताते हैं कि जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए हैं वो एक्यूरेट थे, करेक्ट थे, उनको रीज़न बताते हैं, ताकि ये है कि वो आप लोगों का क्लेम जो है वो रिकंसिडर करें और उसको अच्छे से प्रोसेस करें। Okay, I approach these situations diplomatically. I gather all the relevant documentation, initiate communication between the parties, and work towards a resolution that aligns with contractual agreements. Maintaining open lines of communication is essential to resolving disputes effectively. ठीक है, कोई भी इस तरीके से अगर इशू होता है तो आप लोगों ने बेटर कम्युनिकेशन के साथ, अपनी अच्छी कम्युनिकेशन के साथ उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेना होता है। कैन यू डिस्कस योर एक्सपीरियंस विद ICD 10 coding? Now it's ICD 11. Okay, so answer is I am well versed in ICD 10 coding. If you are learning medical coding, medical billing and medical coding are two different, means ये है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
ठीक है, बट ये है कि मेडिकल कोडिंग के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट टास्क होते हैं। वहाँ पे आपने जो ये है कि मीन्स कि जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं, जो डॉक्टर डायग्नोज करता है कि हाँ भी इस बंदे को ये बीमारी है, इस पेशेंट को, तो वो उनको कोड करते हैं। मीन्स ये कि डिफरेंट कोड्स जो मेडिकल बिलर्स यूज़ कर रहे होते हैं ना कि हाँ भी क्लेम बनाने के लिए, वो कोड जो मीन्स ये कि इन कोड किए जाते हैं, ट्रांसलेट किए जाते हैं, वो मेडिकल कोडर करते हैं। ठीक है। So, having used it extensively in my previous internship, I ensure accurate code assignment for diagnosis and procedures, keeping up with any changes or update to the ICD-10 code set. ठीक है, अगर आप लोगों के पास already experience है, then you can just answer this one. Okay, so next is how do you manage and organize patient billing records efficiently? मीन्स ये है कि patient के जो records होते हैं उनको आप efficiently किस तरीके से maintain करते हो। I maintain a systematic approach to record keeping utilizing electronic filing system. I organize patient billing records by date, ensuring easy accessibility. Regular audits of records help identify and rectify any discrepancies promptly. Okay, you just need to let them know that we just organize all kind of a patient data, means ये कि उसको organize करके रखते हैं। अपने जो फाइलिंग सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक, जो आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर होते हैं उनके पास, उनके ऊपर स्पेसिफिकली उनके अकाउंट नंबर होते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्लेम्स नंबर होते हैं, तो उनके रिकॉर्ड्स को मीन्स ये है कि सेपरेटली ही मीन्स हर पेशेंट का डिफरेंट अकाउंट होता है। ओके, can you discuss your experience with medical billing audits and how you ensure compliance? I have experience participating and conducting medical billing audits to ensure compliance with regulations. This involves reviewing claims, coding accuracy, and adherence to billing guidelines. I am proactive in addressing and identified issues to maintain compliance. ठीक है, अगर कोई भी मीन्स ये कि मेडिकल बिलिंग के अंदर कोई इशू आता है, कोई मीन्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना होता है, और उसके साथ जो मेडिकल बिलिंग प्रोसेस है उनके साथ कैसे कंप्लाइंट रहना होता है, सो यू कैन जस्ट आंसर दिस वन। ठीक है, मीन्स ये है कि मैं अपने जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको, क्लेम्स के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको, मीन्स ये कि एक ऑर्गेनाइज वे में रखता हूँ। उनके जो क्लेम्स होते हैं उनको विद टाइमली है कि प्रोसेस करवाते हैं। कोई डिनाइड क्लेम्स हैं, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स हैं, उनको फॉलोअप करते हैं, और इस तरीके से जो भी मीन्स रेगुलर जो गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलोअप किया जाता है। ओके, next is how do you handle situations where there are delays in reimbursements from insurance companies? अगर sometimes ये है कि आप लोगों से इंटरव्यू पैनल पूछता है कि हाँ भी अगर कोई पेशेंट मीन्स ये कि पेमेंट्स के अंदर डिले है, reimbursements आपको रिसीव नहीं होते, then how you are going to deal that one? Okay, in such situations I first identify the cause of delay, मीन्स देखना पड़ता है कि हाँ भी डिले आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। It could be due to incomplete documentation or other issues. I then follow up with the insurance company providing any additional information needed to expedite the reimbursement process. Clear and persistent communication is the key. ठीक है, you just need to follow up on different claims. If insurance is looking for different kind of a documentation, then you can just provide them. Okay, उनको जो भी required उनकी जो यह कि चीज़ें होती हैं वो आप लोग उनको मेल कर सकते हैं, आप लोग उनको वाया फैक्स भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग ये है कि जो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स पड़े हैं या जो आपको डिले काम है, तो उसके ऊपर आप अपना काम कर सकते हो। Okay, so can you discuss your knowledge of CPD coding and its significance in medical billing? ठीक है, ये स्पेसिफिकली जो मेडिकल कोडिंग सीख रहे होते हैं सो ये उनके लिए है। आई एम प्रोफिशिएंट इन CPD कोडिंग, ठीक है, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी which is essential for accurately describing medical procedures. This coding system facilitates effective communication between healthcare providers, insurance companies, and entitles entities, ensuring proper reimbursement for services rendered. ठीक है, जाहिर सी बात है कोडिंग के अंदर ये है कि मीन्स ये CPD वही होते कोड्स होते हैं जो प्रोसीजर, जो डॉक्टर ने प्रोसीजर किया होता है, कोई सर्जरी की है, कोई ये है कि कोई ट्रीटमेंट किया है, तो वो ये है कि जो जब प्रोसीजर होते हैं उसको जब हम कोड करते हैं वो CPD कहलाते हैं। ठीक है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड CPDs, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज। ओके, so next is how do you handle situations where there are billing errors and how do you prevent them in future? Means कुछ अगर billing के errors आ रहे होते हैं तो उनको आप कैसे डील करते हो और उनको ये फ्यूचर में कैसे restrict करते हो? I address billing errors promptly by identifying the root cause and implementing corrective measures. This may involve additional training processes, improvements, or implementing software solutions to catch errors before claims are submitted. ओके, सो मीन्स ये है कि मैं प्रॉम्प्टली ये है कि जो भी एरर आता है उसको करेक्ट करता हूँ, उसको रेक्टिफाई करता हूँ, दोबारा क्लेम सेंड करता हूँ। अगर दोबारा ये है कि वो क्लेम और चेक्स भी लगा देते हैं कि हाँ भी दोबारा इस तरीके की जो एरर्स हैं वो ना आए। Discuss your familiarity with healthcare reimbursement methodologies, okay, such as fee for service and value based service. अगर fee for service क्या होती है और value based service क्या होती है, अगर आपको ये methods आते हैं, I we have already discussed these
two terms in our previous lectures. You can just watch that lecture. Okay, so I am familiar with various reimbursement methodologies, including fee for service and value based. Understanding these models is crucial for accurately processing claims and ensuring that healthcare providers receive appropriate reimbursements based on the services provided. ठीक है, जिस तरह की भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सो उसके बेस के ऊपर ये है कि जो मीन्स ये कि जो मॉडल्स हैं, इनकी जो मेथडोलॉजीज हैं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो आप ये बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ पता है। ओके, हाउ डू यू हैंडल हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड इंश्योर एक्यूरेसी इन फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट? ठीक है, अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा डाटा है तो आप उसको कैसे डील करोगे? I thrive in fast-paced environments by maintaining a disciplined approach to time management, prioritize tasks using efficient tools, and double-checking entries help me managing high volumes of data while ensuring accuracy. ठीक है, आप लोगों के पास जितना डाटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसके अंदर जो भी मीन्स है कि प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना है, क्लेम्स जो पेंडिंग पड़े हैं उनको सेंड कर देना है। ठीक है, और इसके अलावा कोई और अगर इशू है तो उसको यह है कि रिजॉल्व करके आप लोगों ने अपने जो मीन्स ये कि एआर एजिंग है उसको मीन्स ये कि कम से कम रखना है। ठीक है, जो टास्क जो आपके बकेट के अंदर जो आपके क्लेम्स पड़े हों तो उनको अगर एआर के अंदर काम करते हो तो कम से कम रखना है। अगर आप डेमोज के ऊपर काम करते हो, जो आपके डेमोज डेली के आते हैं, जो भी क्लाइंट है तो उनको डेली का डेली ही आप लोगों ने उनके क्लेम्स बना के इंश्योरेंस को सेंड करने हैं सिंपली। कैन यू शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम व्हेन यू हैड टू एजुकेट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑन बिलिंग प्रैक्टिसेस आर कोडिंग रिक्वायरमेंट्स? क्या आप लोगों के पास ऐसा टाइम आया है? Let's see. In a previous role, I noticed recurring coding errors from healthcare provider. I initiated a meeting to discuss these issues, provided education on proper coding practices, and collaborated on strategies to prevent future errors. This proactive approach improved coding accuracy and reduced claim denials. अगर आप लोगों को कुछ मीन्स ये कि एरर्स पता होते हैं, लाइक ये है कि एक स्पेसिफिक इंश्योरेंस है, ठीक है, वो स्पेसिफिक कोड्स को डिनाई करती है हमेशा, तो उसका फिर यही है कि हाँ भी आप लोग ये वाला जो सीपीटी है उनको बिल ही ना करें, क्योंकि ये है कि बिल करें उसके बाद ये है कि डिनाई आए, डिनाई के बाद अपील जाए। इसके अंदर मीन्स ये है कि जो टास्क इसके ऊपर चला जाता है, लाइक ये है कि जो टाइम आपका स्पेंड होता है वो मीन्स ये कि यूजलेस है। ओके, पहले तो कोशिश करें कि हाँ भी वो जो इस तरह की सिचुएशन है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ओके, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो उसको रिजॉल्व करें। लेकिन अगर ये है कि आप लोग मीन्स ये इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, वो कंसिस्टेंटली मीन्स ये कि कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो मेडिकेट के कुछ ऐसे स्टेट्स में ये कि मेडिकेट जो स्टेट वाइज परफॉर्म करती है, ठीक है, वो कुछ ऐसी सर्विसेज स्टेट टू स्टेट उनकी जो सर्विसेज हैं वो वेरी करती हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर कुछ एक प्रोसीजर है, कुछ डायग्नोसिस है वो कवर होता है और कुछ के अंदर नहीं की जाती। सो अगर एक चीज़ नहीं होती तो अब मीन्स ये कुछ स्टेट के अंदर वो दोबारा कोड आता है, वो प्रोसीजर किया गया है, जहाँ पर ये चीज़ वो सर्विस कवर नहीं होती, तो फिर वहाँ पर वो क्लेम भेजने का फ़ायदा ही नहीं है। ओके, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू पे यू, देन व्हाई यू आर सेंडिंग द क्लेम्स। ओके, next is, how do you stay compliant with government regulations such as Affordable Care Act and Health Insurance Portability and Accountability Act? ठीक है, इनके साथ आप कैसे अपडेटेड रहते हो? I stay informed about changes in healthcare regulations by regularly reviewing updates from relevant authorities. Training sessions and continuous education on ACA and HIPAA guidelines help me stay compliant in all aspects of medical billing, ensuring patients' privacy and data security. Simple. ओके, सो इस तरीके से आप लोगों ने मुझे ये कि बता देना कि हाँ भी मैं उनके साथ इन जो रूल्स हैं इनके साथ अपडेटेड रहता हूँ, मीन्स वेबिनार्स अटेंड करता हूँ, वर्कशॉप्स अटेंड करता हूँ। ठीक है, इनके न्यूज़लेटर को मैंने क्या कहते हैं वो सब्सक्राइब किया हुआ है, और इस ये है कि मैं उनकी डायरेक्टली वेबसाइट्स के ऊपर भी जाकर ये है कि जो चीज़ें हैं उनको ये है कि अपडेट अपने आप को अपडेट रखता हूँ। ओके, हाउ डू यू हैंडल सिचुएशंस वेयर देयर आर डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द पेशेंट्स रिकॉर्ड्स एंड द इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन? अगर पेशेंट के रिकॉर्ड के अंदर या इंश्योरेंस के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर कोई तजाद है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, देन हाउ यू आर गोइंग टू resolve that kind of a thing? I meticulously investigate such discrepancies by comparing patients' records and insurance information. Effective communication with both parties is crucial to resolve these issues. Okay, I ensure that all the relevant parties are updated on the resolution to maintain transparency. ठीक है, अगर पेशेंट के पास मीन्स ये कि पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंश्योरेंस के पास गलत है, ठीक है, उसका एड्रेस ठीक नहीं है या आईडी ठीक नहीं है, या उसके अलावा उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम या उसके अंदर कोई जूनियर की एडिशन है, ठीक है, नॉर्मली जूनियर का ये है कि उनके लास्ट नेम के बाद जूनियर जो लगता है या सीनियर लगता है, तो उसका इशू आ रहा होता है, एलिजिबिलिटी नहीं मिलती स्पेशली मेडिकेयर के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर यह है कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप लोगों ने यह है कि क्लियर और कंसाइज इन्फॉर्मेशन रखनी है। ठीक है, ताकि है कि पेशेंट के पास ये भी हो और यह है कि इंश्योरेंस के पास भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। Okay, so describe your approach to continuous learning and professional development in the field of medical billing. I am committed to continuous learning in
The dynamic field of medical billing, attending workshops, obtaining relevant certifications, and actively participating in professional forums are integral to stay updated on industry past practices and advancing my skills. देखिए इस तरीके से मैं अपने आप को अपडेट भी रखता हूँ और डिफरेंट सर्टिफिकेशंस अगर आप इनसे कर लेते हैं मेडिकल बिलिंग दैट इज़ द गुड काइंड ऑफ अ थिंग. Okay, how do you ensure accuracy in coding and billing? I pay meticulous attention to detail and stay updated on current coding guidelines, regularly training and utilizing coding software help maintain accuracy. Additionally, I always cross-check codes with documentation to ensure consistency. This kind of a question is for the medical coders, not for the medical billers, because medical coders are just going to code different kind of terminologies into different codes. Okay, वो different procedures को different codes के अंदर, different diagnosis को different codes के अंदर ये है कि process कर रहे होते हैं. Okay, as a student, what relevant skills or qualities do you possess that make you a strong candidate for medical billing internship? अगर आप internship करना चाहते हैं किसी जॉब के लिए गए हैं तो as a student जाहिर सी बात है जाते हैं, then the interview panel can ask that kind of a question कि हाँ भी आप लोगों को ask means ये है कि what kind of skills आप लोगों के पास हैं जिससे ये है कि आप लोग अपने आप को medical billing के लिए fit समझते हो. As a student, I have honed my attention to detail through cross coursework and projects. My ability to adapt to new concepts quickly, coupled with my strong analytical skills, positions me well for medical billing internship. Okay, I am also tech savvy, making a proficient with relevant softwares. ठीक है, आप लोग बता सकते हो कि आई हैव ऑलरेडी completed my basic course from YouTube channel. ठीक है, किसी भी चैनल से कंप्लीट किया तो वहाँ पर बता सकते हैं. अगर आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेशन है वो भी दे सकते हैं. ठीक है, और अगर आप लोगों के पास किसी किसी जगह पर इंटर्नशिप की है तो वो भी आप यहाँ पर वो बता सकते हो. How do you handle challenging situations or setbacks, and how do you apply this resilience in a medical billing role? I have setbacks. I view setbacks as opportunities to learn and improve. In challenging situations, I remain calm, assess the issues, and seek solutions. This resilience will be crucial in medical billing role, especially when faced with denied claims or complex billing scenarios. ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने अपनी resilience का, काम, प्रोफेशनल एम्पैथी, कंपैशन का मीन्स की डिमॉन्स्ट्रेशन करनी होती है. ओके, so these were all the 30 questions which I have prepared for you guys. Okay, so if you guys have any kind of a problem, trouble, concerns, कुछ समझ नहीं आया, कुछ issues हैं, then you guys can let me know. Okay, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जो मेडिकल बिलिंग के अंदर मीन्स ये कि यूज़ होती हैं. सो आई थॉट कि हाँ भी ये भी इस टाइम के ऊपर आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए. वो मीन्स ये कि आप लोगों से इंटरव्यू जो पैनल है वो इस तरह के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. ओके, सो सीपीटी क्या होता है? करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी. सीपीटी वही कोड्स होते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ उनकी एग्जांपल्स भी दी हैं ताकि यह है कि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. A CPT code is used to describe medical, surgical, and diagnostic services. For instance, 99214 represents an office visit for an established patient with a moderate to high level of complexity. ठीक है, अब ये कोड्स होते हैं, 5 डिजिट कोड होता है. ठीक है, इसकी स्पेसिफिकेशंस मीन्स इसकी कौन कौन से फर्स्ट टू मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट थ्री जो डिजिट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, या इसकी जो कंप्लीट एक मीन्स ये कि जो चीज़ थी वो मैंने एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया जिसके अंदर सीपीटी और मॉडिफायर्स और क्या कहते हैं डायग्नोसिस कोड्स को हमने थॉरली स्टडी किया था. ओके, सो सीपीडी ये चीज़ होती है मीन्स ये कि कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, सो उसको जो कोड किया जाता है वो इन कोड्स के अंदर किया जाता है. आईसीडी क्या होते हैं? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कोड्स. एग्जांपल, आईसीडी कोड्स आर यूज टू डिस्क्राइब पेशेंट डायग्नोसिस. मीन्स जो पेशेंट को जो बीमारी डायग्नोस की जाती है, जो पेशेंट मीन्स ये कि कोई किसी भी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को कोई जो बीमारी बताई है तो वो है आईसीडी. और उस बीमारी का जो इलाज है मीन्स जो उसका ट्रीटमेंट है, कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया है, वो उसका कोड हो जाता है, सीपीटी कोड हो जाता है. ओके, दैट्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन. ओके, so for instance, I10 is an ICD code for essential primary hypertension. किसी को हाइपरटेंशन है मीन्स उसका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है या उसका ज़्यादा रहता है तो उसके लिए I10 में ये कि एक स्पेसिफिक टर्म इसी के कोड किया गया है कि हाँ भी ये जब लगाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी उसको हाइपरटेंशन है, किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है. ओके, हिकपिक्स क्या होते हैं? हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम्स. ठीक है, ये क्या होते हैं? कोड्स आर यूज्ड फॉर प्रोसीजर्स, सप्लाईज एंड सर्विसेज नॉट कवर्ड बाय सीपीटी कोड्स. मीन जो सीपीटी कोड्स के अंडर नहीं आते कोई प्रोसीजर्स, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो हिकपिक्स के अंदर कोड किए जाते हैं. इसका एक अलग से लेक्चर ऑलरेडी आई हैव मेड, हिकपिक्स के नाम से ही बना हुआ है. आप लोग उसको अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो. रिप्रेजेंटिंग एन इंजेक्शन ऑफ वाइटामिन B12. ठीक है, तो ये एक जो एग्जांपल है ये इसकी हिकपिक्स के अंदर आ जाती है.
नेक्स्ट इज UB04 यूनिफॉर्म बिलिंग फॉर्म। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है? एग्जाम्पल, द UB04 फॉर्म इज यूज्ड फॉर फैसिलिटी बिलिंग सच एज हॉस्पिटल services. It includes information on patient demographics, date of service and और itemized charges। मीन्स ये है कि सेम ये हिकफा जैसे हमारा 1500 का फॉर्म होता है, सेम उसी तरीके से ये होता है, लेकिन ये हॉस्पिटल सर्विसेज को कवर करने के लिए मीन्स ये है कि जो इंश्योरेंस को सेंड किया जाता है वो ये है। इसके अंदर चीज़ें ऑलमोस्ट उसके अंदर भी सेम होती हैं और इसके अंदर भी सेम ही होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज EOB एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स। इसके अंदर मीन्स के इंश्योरेंस ने किस तरीके से क्लेम को प्रोसेस किया है, उसने क्या क्या चार्जेस मीन कितनी अलाउड अमाउंट थी, कितनी पेड अमाउंट है, कितने उसने डिडक्टिबल्स बनाए हैं, कोई पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सारी जो उसके अंदर एक्सप्लेन की जाती हैं वो है, उसे हम कहते हैं EOB एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स। एंड EOB इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम an insurance company explaining how a claim was processed. It provides details on amount billed, covered, and any patient responsibility. Simple. What are deductibles? A deductible is an amount a patient must pay out of pocket, मीन्स वो अपनी जेब से ही पे करता है, ठीक है, before the insurance begins to cover healthcare expenses. For example, a plan may have a 500 deductibles। ठीक है, कोई आपने प्लान लिया है, पेशेंट ने कोई प्लान लिया है, सो उसको ये है कि जब वो $500 मीन्स $500 जब तक वो पे नहीं करेगा तो इंश्योरेंस उसकी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। इंश्योरेंस इज नॉट गोइंग टू कवर हिज आर हर एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके एक्सपेंसेस को बेयर नहीं करेगी जो उसको जो उसने प्लान वो परचेज किया है। ठीक है, जब वो ये वाली पेमेंट कंप्लीट कर देता है, ठीक है, फिर ये है कि इंश्योरेंस भी अपना जो है कि पार्ट जो है वो पे करना स्टार्ट कर देती है। ओके, what is co-payment? Co-payment is a fixed amount a patient pays for a covered service. For instance, a doctor office visit may require $20 को पेमेंट। ठीक है, को पेमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट होती है कि हाँ भी जब आप ये सर्विस लेंगे तो आप लोगों की ये एक फिक्स्ड अमाउंट है आपने जाकर ये एट दैट मोमेंट पे करनी है। सपोज अगर किसी ने कोई ऑफिस विजिट करना है, ठीक है, प्रोवाइडर का कि हाँ भी मैं अब जस्ट ये है कि रूटीन चेकअप करवाना चाहता हूँ, तो वो जाएगा पहले ये है कि $20 देगा, तो ये है कि उसको चेकअप किया जाएगा। ठीक है, दैट इज को पेमेंट। को इंश्योरेंस क्या होती है? को इंश्योरेंस इज द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट शेयर्ड बिटवीन द पेशेंट एंड द इंश्योरेंस कंपनी। Okay, if the co-insurance is 80-20, the insurance pays 80% and the patient is going to pay 20%। ठीक है, सो इस तरीके से ये को इंश्योरेंस मीन्स ये कि इंश्योरेंस जो ये बनाई जाती है को इंश्योरेंस, ठीक है, एक प्राइमरी इंश्योरेंस भी होती है नॉर्मली, ठीक है, एक सेकेंडरी इंश्योरेंस भी होती है, टर्शरी भी नॉर्मली लोगों के पास होती है। मीन्स ये कुछ दैट इज़ अ रेयर टाइप ऑफ अ थिंग, लेकिन ये है कि नॉर्मली लोगों के पास मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी उनके पास दो इंश्योरेंस होती है। अब को इंश्योरेंस जो है कि पार्ट यहाँ पर जो पेशेंट का बनाया गया है, अगर उसकी दो इंश्योरेंस हैं तो कुछ जो 80% पार्ट है वो प्राइमरी पे कर देगी और जो 20 रह जाता है वो सेकेंडरी पे कर देगी। ठीक है, सो इस तरीके से ये बैलेंस किया जाता है। अदरवाइज उसके बाद जस्ट प्राइमरी है तो फिर वो पेशेंट के रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, वो फिर सिर्फ पेशेंट ने ही पे करना होता है। प्री ऑथराइजेशन example, before a certain medical services, insurance companies may require pre-authorizations. For instance, elective surgeries or expensive diagnosis tests may need approval in advance। अगर कोई मीन्स ये कि जाहिर सी बात है कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनकी ऑथराइजेशन लेना कि हाँ भी इंश्योरेंस कंपनी से पूछना कि हाँ भी हम ये टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, हमारे पास ये ऑथराइजेशन मीन्स ये कि हमें कोड प्रोवाइड करता है कि हम ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सो वो जो कोड्स होते हैं या जो वो एक स्पेसिफिक मीन्स ये है कि आप लोगों के पास अल्फ़ा न्यूमेरिक जो मीन्स ये कि वैल्यू आती है उसको आप ऑथराइजेशन करते हो, वो प्री ऑथराइजेशन मीन्स कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आप लोगों ने उसकी मीन्स की इजाज़त लेनी है, उसको परमिट लेना है कि हाँ भी हम ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। ओके, क्लेम एडजुडिकेशन। क्लेम मीन्स ये कि जो प्रोसेस किया जाता है इंश्योरेंस की तरफ से उसको फिर ये है कि मीन्स क्लेम एडजुडिकेशन में आ जाता है। क्लेम एडजुडिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंश्योरेंस कंपनी रिव्यूज एंड प्रोसेस अ क्लेम फॉर पेमेंट। इट इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग कवरेज, चेकिंग कोड्स एंड डिटरमाइनिंग पेमेंट और डिनाइल। ठीक है, वो कोड्स को चेक करते हैं, पेमेंट को मीन्स ये है कि फिर उसके बाद ये रिलीज करते हैं, आया कि उसके बाद डिनाइल कर दी है किसी इशू की वजह से या किसी एरर की वजह से, तो फिर उसको पे नहीं करते। अदरवाइज ये है कि जो एडजुडिकेशन में जो प्रोसेस किया जाता है क्लेम चेक करने के बाद उसको एडजुडिकेशन किया जाता है, कहा जाता है। ओके, क्लीन क्लेम मींस ऐसा क्लेम जिसके अंदर कोई एरर नहीं होता उसको हम क्लीन क्लेम कहते हैं। ठीक है, अ क्लीन क्लेम इज करेक्टली कंप्लीटेड क्लेम फॉर सम फ्रॉम सबमिटेड form submitted to insurance company without errors or missing information, it is more likely to be processed quickly। ऐसे जो क्लेम्स होते हैं क्लीन क्लेम्स होते हैं वो इजीली प्रोसेस हो जाती है, उनके ऊपर मीन्स ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती और विद इन नो टाइम उनकी रिइंबर्समेंट जो है वो रिसीव हो जाती है। Next is denial code. Denial code indicates errors or reasons
Why an insurance claim was not paid मीन्स डिनाइल कोड्स ऐसे कोड्स होते हैं, स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, इंश्योरेंस जो है वो कंपनी उसको लगा के भेज दी है, ठीक है। CO18 हमने ये जो कोड्स हैं ये ऑलरेडी डिनाइल जो कोड्स हैं इनको एक अलग से लेक्चर के अंदर कंपेयर किया है। उसके अंदर जो मोस्ट डिनाइल्स आते हैं, डुप्लीकेट डिनाइल है, टाइमली फाइलिंग डिनाइल है, प्री ऑथराइजेशन के डिनाइल्स हैं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस मीन्स ये के लेक्चर यू कैन से दैट आर काइंड ऑफ अ टॉपिक इन डिटेल इन प्रीवियस लेक्चर्स, ओके, you can just get that one. So, for example, denial code CO96 might signify that the service is not covered by the patient's plan. Means CO96 जो कोड है अगर इंश्योरेंस लगाती है तो इसका मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस जो आप लोगों ने सर्विस प्रोवाइड की है ये पेशेंट के प्लान के अंदर आती ही नहीं है, तो सो वी आर नॉट गोइंग टू पे दैट काइंड ऑफ अ थिंग। नेक्स्ट इज रेमिटेंस एडवाइस, इसको आप ERA भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस। EOB और ERA ऑलमोस्ट सेम होती हैं। EOB एक पेपर फॉर्म में होती है और ERA जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड एक होती है, ठीक है। Example, an ARA is a document sent by an insurance company to provide explaining the reimbursement for each service on a submitted claim। Means जो आपने क्लेम सबमिट किया है उसकी जो आप लोगों के पास रेमिटेंस आती है, हालांकि है कि जो एक्सप्लेनेशन आती है उसको ये है कि इलेक्ट्रॉनिक अगर वो सेंड करते हैं तो वो ERA कहलाती है, RA, ओके। CMS 1500 explains the CMS 1500 form is used for professional non-facility billing। मीन्स ये कि ये नॉन फैसिलिटी बिलिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वो जो हमने UB04 वो देखा था वो हॉस्पिटल सर्विस के लिए होता है, ठीक है, ये नॉन फैसिलिटी के लिए है। इट इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन ऑन द पेशेंट, द प्रोवाइडर एंड द सर्विस रेंट प्रोवाइडर। मीन्स इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, सेम ऑलमोस्ट वही चीज़ें ही होती हैं, बट वो ये है कि वो दैट वाज फॉर द फैसिलिटी, ये नॉन फैसिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है इसकी? EDI इज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन बिटवीन प्रोवाइडर्स एंड पेयर्स, ठीक है। पेयर्स और प्रोवाइडर के दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है, मीन्स ये है कि जो हम डाटा शेयर कर रहे होते हैं वो किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के थ्रू होता है और इसको हम EDI कहते हैं। इट फैसिलिटेट्स द इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ क्लेम्स फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। इसमें यह है कि हम जो क्लेम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ही, हमारे पास पेयर आईडीज़ होती हैं डिफरेंट स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनी की, हम उनके ज़रिए है कि जो क्लेम्स होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज को ईजिली इलेक्ट्रॉनिकली ही सेंड कर देते हैं। पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द पोर्शन ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट दैट द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच एज डिडक्टिबल्स, को पेमेंट्स एंड को इंश्योरेंसेज, ठीक है। पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही चीज़ होती है जो जिसमें यह है कि पेशेंट के पास डिडक्टिबल्स बने होते हैं, को पेमेंट्स बनी होती है, को इंश्योरेंस होती है, ठीक है। डिडक्टिबल्स वो ये है जिससे ये है कि पेशेंट की जो इंश्योरेंस है वो कवरेज स्टार्ट कर देती है, वो स्पेसिफिक पेमेंट। को पेमेंट क्या है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट होती है जो ये विजिट के ऊपर जो भी मतलब सर्विस रिसीव करता है या, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको देनी होती है। को इंश्योरेंस ये है कि कुछ पार्ट जो होता है वो पेशेंट पे करता है, कुछ जो है वो इंश्योरेंस पे करती है, ठीक है। फी स्केड्यूल, अ फी स्केड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड चार्जेस ऑफ मेडिकल सर्विसेज। फॉर इंस्टेंस इट आउटलाइंस हाउ मच एन इंश्योरेंस कंपनी इज विलिंग टू पे फॉर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। मीन्स फीस स्केड्यूल, स्पेसिफिक मीन्स कोई भी स्केड्यूल होता है, ठीक है, तो इसमें ये फीस स्केड्यूल कि हाँ भी इतना ये जो सर्विसेज हैं इनकी हमने इतनी इतनी पेमेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। रेट्स होते हैं डिफरेंट सर्विसेज के, ओके। आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम, the out-of-pocket maximum is the maximum amount a patient has to pay in a year for covered medical expenses before an insurance covers 100% cost। अगर आप चाहते हैं कि हाँ भी कोई इंश्योरेंस आपकी 100% ये है कि पेमेंट करे, ठीक है, तो आप लोगों को ये है कि कुछ से जो उन्होंने आउट ऑफ पॉकेट बनाए होते हैं वो मैक्सिमम अगर आप ये है कि पे कर देते हो देन दे आर जस्ट गोइंग टू कवर ऑल योर एक्सपेंसेस 100%, ओके। सो दिस वाज ऑल इट। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, पीछे हमने 30 क्वेश्चंस देखे हैं ताकि ये है कि आप लोगों का जो एक अपडेटेड काइंड ऑफ मीन्स ये है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएं, ओके। सो इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू काइंड ऑफ अ थिंग। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस कंसर्न्स देन यू गाइस कैन लेट मी नो, आई विल गेट बैक टू यू soon as possible, okay। So take care of yourself and your family, remember me in your kind prayers। inshallah we'll meet in the next lecture। Allah Hafiz।